ऐसे होंगे. These questions will be based on the formula. Just remember the formula and you will find out the answer. So दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले I would like to tell you that you can see here a blackboard. Just candidate, don't judge me by this blackboard. It is very small. But candidate, which strategy I will tell you, this will be very beneficial for you all. I have cleared NDA paper just by studying only 2 to 4 hours per day in my home. How did he qualify? Because he follows a good strategy. I mean, I'll give you the paper. That first of all, you have to be calm and quiet. Just take a long breath and just be relaxed. Just relax your mind and just think that how must I study at my home, and just think about your parent. That for which I am here and to give my NDA paper. That when I become the lieutenant, then how much proud my father and my mother will feel on me. That which you have to think, and you have to just relax. Then future officers. First of all, I would like to introduce myself that how did I face failure in my life in NDA exam and how I qualified NDA exam. Yani how did a failure person become a successful person and how I qualified my NDA exam. Full strategy I will share with you. And so please, if you are 12th student, if you have passed out a 12th class, and if you are going to appear in the NDA exam in the first attempt, it is your first attempt, yeah, even if it is your second, it is your third, it is your fourth attempt. So please continue with me, and I will tell you a specific strategy to clear the math NDA paper. How will you face and which strategy you have to follow. And candidates, I would like to tell you that without any strategy you cannot clear a exam. So first of all, you have to follow a specific strategy and you have to be under the guidance of a specific person. So which strategy I followed, and I qualified my NDA exam, and I got a good marks in NDA math paper. And how did I get the good marks with whole studies, I will share with you also. Please continue with me in this whole video, and trust me that this video is very helpful. And by this video, how I will tell you that how will you get the 250 marks out of, and कि आपको 300 में से how will you get 250 marks. So whole video you have to watch, and I will tell you a specific strategy. Okay, so दोस्तों अभी आपको कैसे strategy बताएंगे. दोस्तों एक 12th class का student, if a 12th class student has just passed out his exams and is going to appear in the NDA exam, so दोस्तों for him to follow a best study is also mandatory, because without any study यानी कि एक 12th क्लास का स्टूडेंट होता है, उसे ये नहीं पता होता कि बस उससे केवल अपने स्कूल का जो वो होता दायरा होता है उसी के अंदर से पता है, यानी कि स्कूल के एग्जाम को कैसे फेस करना है और स्कूल के अंदर कैसे बिहेवियर करना है वही उसे पता होता है. यानी कि उससे बस इतना ही पता होता है कि उसे हर एक पर्सन को अटेम्प्ट करना है. यानी कि स्कूल के अंदर अगर आप लोगों ने एग्जाम दिए और दोस्तों आप सभी ने एग्जाम दिए, बोर्ड एग्जाम दिए, तो दोस्तों आपको ये सिखाया जाता है कि आपको बोर्ड एग्जाम का हर एक पर्सन को अटेम्प्ट करना है, हर एक जो वो क्वेश्चन था उसे सोल्व करना है. बट दोस्तों कंपटीशन का एरिया है. दोस्तों इस कंपटीशन के एरिया के अंदर ऐसा नहीं कि आपको हर एक जो क्वेश्चन है उसे सोल्व करना नहीं. दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिससे छोड़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा. और दोस्तों 12th क्लास के स्टूडेंट के अंदर दिमाग में बस इतना ही होता है कि ये तुझे हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना. और दोस्तों यही वो बात है कि जो एनडीए का पेपर से क्लियर नहीं होता है. तो दोस्तों कैसे आपको स्ट्रेटेजी को फॉलो करना और कैसे आपको अपने एनडीए का पेपर निकालना, मैं स्पेशली आज मैं मैथ की स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ और जो गेट है उसकी स्ट्रेटेजी में आगे बनाऊँ कल. तो दोस्तों आज आपको एनडीए मैथ की स्ट्रेटेजी मिलेगी जो स्पेशली 12th क्लास स्टूडेंट के लिए. दोस्तों इस वीडियो को यार शेयर करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप वो शेयर करते देन वी बी सो मोटिवेटेड टू मेक दिस सच लाइक इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू ऑल. सो दोस्तों जो 12th क्लास स्टूडेंट है ना, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है. सो दोस्तों अब अपनी स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं. जस्ट टू बी कंटिन्यू विद अस इन दिस वीडियो. सो कैंडिडेट देखिए दोस्तों, आपको चाहे आपने कितनी से मेहनत की हो, इट डज नॉट मैटर. अगर आप 5 घंटे पर डे पढ़ते हो and if you don't qualify your NDA paper, so then this all will be spoiled. And if you study at least 1 to 2 hours per day for the math for the NDA exam and you qualify, you follow the best strategy. So candidate, strategy plays a vital role to clear your paper. I would like to tell you that कि स्ट्रेटेजी चाहे आपने घर पर चाहे आपको कोई आपका दोस्त या कोई भी इंसान हो, आपको ऐसा अवश्य बताता होगा कि मैंने केवल 2 से 3 घंटे पढ़ाई की थी फिर भी मैंने एनडीए का एग्जाम निकाला. क्यों निकाला? क्योंकि उसने एक स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था. दोस्तों जो स्ट्रेटेजी उसने फॉलो की थी और जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी वो स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा. सो कैंडिडेट्स इस वीडियो को पूरा वॉच करना और वो सारा हर एक डाउट मैथ के पेपर से रिगार्डिंग दैट ऑल विल बी क्लियर. सो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड इज हियर दैट यू ऑल नो दैट there will be 120 question in your NDA math paper. How will you face? And there will be almost 2.5 hours for the paper to solve the paper, to write down, to mention, to find out your answer and to mention this in the OMR sheet. There will be almost 2.5 hours.
it is almost about 150 minutes. यानी कि means that 120 questions and 150 minutes. I think that it is sufficient. It is more than sufficient because you get at least 1.5 minutes for each question. It is very and very enough for the candidate to solve a question in one and a quarter minute. So now, how will you face that? I have divided this segment in the 4 parts. There is the first 20 questions, next 30 questions, next 40, and next 30 questions. I have divided in that 4 segments. Now there is 20 questions. These 20 questions will be very, very easy. And first of all, I would like to tell you that too. When you see this, when you see your NDA paper, when you're after it, you have to just open your paper, and after it, you will have to give the 5 minutes. Means you will have to give the 5 minutes to read out the whole paper. You have to give the 5 minutes to read out the whole paper, and in these 5 minutes, you have to spend on your paper, and you have to find out those persons, which I will tell you that you have to find out those persons, which is very easy. That you have to just give the mark to all the questions. That firstly, which question I will do first, and it means that कि आपको वहाँ पर हर क्वेश्चन को मार्क करना है. That's कि आपको एक एग्जांपल तौर पर I am explaining you by the example of 1 to 10 question. You have seen the 1 to 10 question, and how will you mark that these questions? First of all, you have to mark. You have to give the grade to all the person that which you have to like that. You have to mention that the first, second, third, and fourth. These all number you have to mention in your paper. Okay, the person you will mention that the first, this person you will do firstly, and the second you will mention that this person you will do on the second attempt. Okay, now first of all you will mark all the questions. Okay, after marking that, यानी कि आपको यहाँ पर 5 से 7 मिनट पूरे पेपर को एनालाइज करना है. After analyzing, you have to mark all the question. यानी मार्क अगर आप करते हो, यानी कि अब आपने हर एक क्वेश्चन को मार्क कर लिया. After you will have, on this marking system you have to spend at least 5 to 7 minutes. यानी कि आपने अभी तक 5 से 7 मिनट आपकी वो खराब हो चुके. This is not wasted. This you have to spend. यानी कि ये आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाएगी. यानी कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को मार्क करना है. After studying your whole paper, you have to mark all the questions. This will also save your more time when you will go to attempt the person. Okay. Now after these 20 questions you have to mark. And these 20 questions you have to mark that you will do the firstly. That you have to do the first. These questions, I think that these questions you can easily do in the 30 seconds. यानी कि आप वहाँ पर 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपने देखा, and just you will do and go to move forward to the next question. Okay, 20 क्वेश्चन आपने 30 सेकंड के अंदर अटेम्प्ट कर लिया. यानी कि यहाँ पर you have to spend the 10 minutes. आपने यहाँ पर स्पेंड कर दिए 10 मिनट्स. उसके बाद नेक्स्ट 30 क्वेश्चन which you have marked for the second attempt. Okay, यानी कि वहाँ पर 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने लिखा है second. These questions you have to attempt on the second. I think that here you have to spend only 1 minute. Here you will spend the only 1 minute. यानी कि पहले 20 होंगे. These questions will be based on the formula. Just remember the formula and you will find out the answer. Next, these questions will be just कि आपको थोड़ा सा वो formula लगाना पड़ेगा. थोड़ी सी वो you have to do the calculation. यानी कि मीन्स आपने formula लगाया and आप एक लाइन कम से कम उसकी करनी पड़ेगी. वो ऑन है, ठीक है. उसके बाद जस्ट यू विल स्पेंड हियर द 1 मिनट. यानी कि यहाँ पर आपने अपने यहाँ पर 30 सेकंड को स्पेंड कर दिया, यानी 30 मिनट को. These next 40 questions, this will be some difficult. These person, those candidate who will do this, यानी कि ये वही कैंडिडेट कर पाएगा जिसने मैथ को थोड़ी गहनता से पढ़ा है. ओके, यानी कि अगर आपने स्टडी एटलीस्ट आपने पर डे 1.5 अगर आपने स्टडी किया मैथ की एनडीए के लिए, तो आप दिस 40 क्वेश्चन यू विल एबल टू अटेम्प्ट. ओके, हियर यू हैव टू स्पेंड 1 to 30 मिनट. ओके, दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट स्पेंड करनी पड़ेगी. ओके, सो अभी यहाँ पर आई थिंक दैट आपने यहाँ पर 60 मिनट स्पेंड कर दिए. ओके, यानी कि यहाँ पर आपने 60 मिनट स्पेंड कर दिया. यानी कि अभी तक आप 90% को आपने स्पेंड किया और अभी तक आपके कितने मिनट कितना टाइम स्पेंड उसका. दैट्स आई विल गो टू कैलकुलेट. दैट्स 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 एंड 10. यानी कि लगभग आपने 100 मिनट स्पेंड किए. अभी तक आपने 100 प्लस 10 आपने 110 मिनट स्पेंड किया. यानी कि आपने 110 मिनट के अंदर वहां पर ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं. इट इज वेरी गुड स्कोर. ओके, यानी अगर आप अभी आपके पास 40 मिनट बची हुई, ठीक है. अभी 40 मिनट्स के अंदर आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने. और दोस्तों 30 क्वेश्चन को मैंने आई हैव डिवाइडेड हियर इनटू द 2 पार्ट. फर्स्ट 15 क्वेश्चन एंड द सेकंड 15 क्वेश्चन.
सेकंड 50 क्वेश्चन दे आर दोज क्वेश्चन हु विल पजल द स्टूडेंट, यानी कि ये 15 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो स्टूडेंट को वो करेंगे पजल करेंगे। दिस एग्जामिनर मेंशन, यानी कि एग्जामिनर इसलिए मेंशन करता है उसके अंदर कि स्टूडेंट इसके अंदर वो फंस जाए और उसका पेपर छूट जाए। ओके, यानी कि ये 15 क्वेश्चन है और ये 15 क्वेश्चन में से दोस्तों मैं हकीकत बता रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम अगर ये पेपर को फेस करने जा रहा है तो दोस्तों आप इसको ध्यान से लेंगे कि ये 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन आएंगे ना, कि अब स्टार्टिंग के अंदर 1 से लेकर 20 क्वेश्चन आएंगे तो स्टार्टिंग के अंदर 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डेफिनेटली आपको वो कंफ्यूजन करेंगे। तो दोस्तों आपको इसी क्वेश्चन से बच के रहना एंड जस्ट लीव दिस क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चन को छोड़ते हो तभी आपका पेपर अच्छा होगा। दोस्तों हकीकत बताऊंगा, आपको इन 15 क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ेगा यार। अगर आप इन 15 क्वेश्चन के चक्कर में पड़ जाओगे तो आपका दिमाग पूरा वो खराब हो जाएगा। और दोस्तों इन 15 क्वेश्चन को छोड़ोगे तभी आपका पेपर अच्छे से वो हो पाएगा। यानी कि these 15 क्वेश्चन यू हैव टू लेफ्ट। अब these 15 क्वेश्चन यानी कि आपको 40 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन करते हैं, यानी कि ईच क्वेश्चन आपको लगभग 2 से 2.5 मिनट मिल रहे हैं। यानी कि अगर आपने अच्छी स्टडी की, मैथ के अगर एक गहनता से एक बारीकी से एक पॉइंट को पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपने अच्छे से स्टडी की घर पर मैथ की, सो दोस्तों आप इन 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सक्षम हो जाओगे। सो दोस्तों अभी देखिए अभी आपने 90 प्लस 15 होता है 105। दोस्तों मैथ के अंदर 120 में से 105 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों 120 में से 105 क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करते हो ना, सो दोस्तों इट इज ऑलमोस्ट, आपका कितना स्कोर होता है कि नहीं, लगभग 250 प्लस 10 और लगभग आपका होता है लगभग 260 के आसपास इसका आपका स्कोर है। दोस्तों 300 में से 260 स्कोर होना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो स्ट्रेटेजी हमने बताई है इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, क्योंकि दोस्तों एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, एक स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना, तो दोस्तों चाहे वो वॉर जोन हो चाहे एग्जाम का आपका सेंटर हो, दोस्तों स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करते हो तभी वो एग्जाम आपका क्लियर होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जस्ट शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दी अपडेट। दोस्तों अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। जय हिंद, जय भारत।